بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کے رنگ روز کے سنگ. ہاں، عید کے رنگ روز کے سنگ. عید کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام خوشیوں کے لحاظ سے آپ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے عید کا پورا ماحول اور پوری زندگی جو ہم عیدیں گزار رہے ہیں، ہمیں ایک لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ عید کا ہمیں غریبوں کو لازمی یاد رکھنا چاہیے. اس میں غریب رشتہ دار ہیں، غریب دوست یار ہیں، کافی ایسے لوگ ہیں جو کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے، جوتے افورڈ نہیں کر سکتے، مگر ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. تو اس لحاظ سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی غریب رہ تو نہیں گیا. آپ تو عید منا رہے ہیں، آپ تو عید کی خوشی منا رہے ہیں، کیا وہ رہ تو نہیں گیا؟ کیونکہ ان کی عید آپ کے ساتھ ہوگی تو ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی طرف سے خوشیاں بکھیرے گی. تو اس لحاظ سے عید کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں روبینہ صاحبہ؟ عید خوشی کا دن ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ وہ خوشیاں بانٹیں. اس دن تمام رشتہ دار، دوست، احباب، بہن بھائی ساری رنجشیں بھلا کر ایک دوسرے کے گلے ملیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس خوشی کو منائیں مل کر. بہت خوب آپ نے بات کی. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے کتنے ایسے دوست، رشتہ دار، بھائی جن کے ساتھ ہماری نفرتیں، لڑائیاں، چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹے چھوٹے غلط فہمیاں ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس عید کے حوالے سے، عید کے لحاظ سے آپ نے ان کے ساتھ پیار محبت سے ملنا ہے، ساری نفرتیں دور کرنی ہیں، ساری کدورتیں دور کرنی ہیں، کیونکہ ناراضگی زیادہ نہیں چلے گی. تو اس لحاظ سے آپ سے عید کے حوالے سے یہ کہا جائے گا، ایک ہماری طرف سے ایک پیار محبت کا ایک پیغام ہے کہ آپ نے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سب کو عید کے لحاظ سے، عید کے بہانے کے لحاظ سے آپ ان سے جا کے ملیں اور ساری نفرتیں دور کریں. تو اس لحاظ سے آپ پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے عید کے حوالے سے ہمارے بہت پیارے دوست جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ آج ہم نے ان کو دعوت دی کہ ہماری عید کی خوشیوں میں وہ رنگ دوبالا کر دیں، اور عید جو روز کے ساتھ ہم منا رہے ہیں اس لحاظ سے ہم دعوت دیں گے اپنے بہت سینئر آرٹسٹ جن کو ہم دیکھ دیکھ کے اس فیلڈ میں چلے ہیں، اس فیلڈ میں بہت کچھ سیکھا ہے. تو ہمارے بہت سینئر آرٹسٹ آپ کی تالیوں میں جناب ذوالقرنین حیدر صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت مہربانی، شکریہ جی. آپ ہمارے عید کے حوالے سے ہمارے پاس ہماری خوشیوں میں خوشیوں کو دوبالا کیا آپ نے. آپ کا شکریہ، آپ نے بلا کے میری عزت افزائی کی. بہت مہربانی، شکریہ. اور ہماری دوسری آرٹسٹ سنگر بھی ہیں اور بہت پیاری آرٹسٹ بھی ہیں، اور بلکہ چائلڈ ایج کے سے انہوں نے سنگنگ شروع کی. تو بہت پیاری آرٹسٹ ہمارا آپ کے سامنے جناب شمع عادل صاحبہ. تالیاں جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. شکریہ. اور السلام علیکم، اور تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو عید مبارک. خیر مبارک. جناب ہمارے تیسرے مہمان، جناب یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، بتاشا ڈرامے ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں، کر بھی چکے ہیں، اور بہت ایسے سنگر بھی ہیں. تو آپ کی تالیوں میں جناب ارشد خان صاحب. السلام علیکم جی. اور سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. دیکھنے والوں کو عید مبارک، اور آپ سب کو بھی عید مبارک. تو جناب میں گزارش کروں گا سب سے پہلے ذوالقرنین حیدر صاحب سے کہ وہ ماشاءاللہ ہمارے اس شعبے میں کافی عرصہ انہوں نے گزار چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی بھی بہت زیادہ آگے کام کر رہے ہیں. تو میں جناب ذوالقرنین حیدر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے عرصے سے یہ کر رہے ہیں، تو آپ نے کچھ عید کے حوالے سے کوئی بات کریں کہ آپ نے بچپن میں عید کیسے گزارتے تھے اور آج آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے؟ بچپن میں ہم عیدیاں وصول کرتے تھے، اب عیدیاں دیا کرتے ہیں. بہت ہو. یہ فرق ہے. مگر یہ کہ اس ٹائم خوشی ہوتی تھی لینے کی، اب دینے کی بھی خوشی بھی ہوتی ہے، مگر یہ کہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جا رہے نہیں. یہ ہے نا. تو اس لحاظ سے دونوں اینگل ہے. مگر یہ کہ دونوں کا اپنا مزہ ہے، اور پروردگار اسی طرح قائم دائم رکھے مولا کریم. اس وقت بزرگ جو ہم عیدی دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے بزرگ یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہمیں دیکھ کے. بے شک. کیونکہ ہم کو جو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے بے شک اس کا کوئی بتا نہیں سکتا. بے شک. کیونکہ وہ شفقت آپ کے بزرگوں کی آپ کے سر پہ تھی، ابھی آپ کے بچوں پہ شفقت ہے. بے شک. یہ اپنا اپنا ایک پیار ہے. تو یہ بتائیں آج کل کوئی پروجیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ یہی سوال مجھ سے کیا تھا توثیق نے. اچھا.
तो मेरे आने वाले प्रोजेक्ट का नाम है यकीन। यकीन, माशाल्लाह। तो मुझसे तौसीक करने लगे कि यकीन के होता है। हाँ। तो मैंने बोला एक मरासी जा रहा सी जंगल में, माशाल्लाह। अच्छा तो वो उसका पैर स्लिप हुआ, अच्छा तो वो नीचे खाई में गिर रहा, तो गिरते गिरते उसके हाथ में एक डाली आ गई। अच्छा। वो लटक गया। हाँ। अब उसने नीचे देखा, हाँ। तो वो खाई ऊपर चढ़ नहीं सके, तो उसने आवाज दी कि है कोई जो मुझे बचाए। तो गैब से आवाज आई, हाँ हम हैं, छोड़ दो हाथ, तुम्हें कुछ नहीं होता। हाँ। उसने कहा कौन? आवाज आई, हम कुदरत हैं, छोड़ दो हाथ, तुम्हें कुछ नहीं होता। तो मरासी ये कहने लगा, और कोई है? तो यकीन का मतलब ये है कि यकीन कामिल, अल्लाह पे अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। तो वो था, तो उसका भी यही हाल था। वो वाइंड अप होते होते मैंने ये सुनाया, उससे वाइंड अप नहीं हो रहा था। हाँ। कि ये की गल की थी दूसरी सही है। तो यकीन का मतलब, हम दुआ मांगते हैं ना, जी। बेयकीनी की कैफियत होती है। आप परवरदिगार से मांगे ये सोच करके वो आपको देख रहा है, बेशक। और बहुत अफजल है कि आप उनको देख रहे हैं। तो ये अगर फीलिंग्स रखेंगे तो खुदा से जो मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। वो तो खैर वैसे भी इशारत के करीब है, वो तो ना भी मांगे तो वो दिलों का भेद जानता है। बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह। जनाब शमा आदिल साहिबा, आपको तकरीबन चाइल्ड उम्र में आपने मतलब ये शुरू किया और आज तक आप माशाल्लाह करती आ रही हैं। आज भी आप चाइल्ड ही हैं, मगर बहरहाल उस लिहाज से आप बताएं कि आपके बचपन की क्या ईद की सिचुएशन थी और आज की क्या है? मैं कहना चाहूँगी कि मेरी ईद में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। हाँ। तो अभी बड़ी होकर भी मैं सबसे छोटी ही हूँ। वाह। तो उसी तरह लाड और प्यार है। और बचपन में ना, आप वो जो ये बात कर रहे थे नोटों की, तो हमें बड़ा क्रेज़ होता था कि वो जो कुरकुरे से करारे नोट होते हैं ना, हम सबसे आगे लाइन में खड़े होते थे कि हमें ये करारे, नहीं ये गला हुआ नोट है, ये नहीं लेना, ये वाला लेना है नोट। पहले ये था कि हमारे दौर में जैसे वो थे कि थोड़े बहुत पैसों में भी काम चल जाया करता था। आजकल के बच्चे वो 500 से नीचे आते ही नहीं। वो तो उनके लिए तो वो चीज़ें, तो दिस इज अ बिग चेंजेस इन लाइफ। 500 के नीचे आ जाए तब भी दम अच्छा, ऐसा ही है। तो ये बताएं आजकल मतलब कुछ सिंगिंग के लिहाज से ज़्यादा मेहनत हो रही है या किसी ड्रामे के लिहाज से? आफरीदी साहब, अभी डिफरेंट चैनल्स पे काम कर रही हूँ और सिंगिंग इज़ माई पैशन, तो वो मैं छोड़ नहीं सकती। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो साथ साथ जारी है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो पर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उनको होस्ट करना, ड्रामा आर्टिस्ट, आज अभी भी रिकॉर्डिंग थी वहाँ पर भी हमारी। तो बस हम वही इसी में मसरूफ़ हैं और कोई ख़ास इसके अलावा कोई मसरूफियत नहीं है। आर्टिस्ट जो है ना, वो आर्टिस्ट ही रहता है, उसे आर्टिस्ट ही होकर मरना है, वो इसमें से निकल ही नहीं सकता है। ये कह सकते हैं कि एक एडिक्शन है, इस एडिक्शन में से हम बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। जब तक सांस नहीं निकलेगी हम रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अरशद साहब से क्या पूछेंगी? सर, आप मुझे बताएं कि आपकी ईद पहले कैसी थी और अब कैसी है, लाइक बचपन में कैसी थी और अब कैसी थी? जी, सबसे पहले तो मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। मुझे आज खुशी है कि मेरे साथ बड़े लेजेंड आर्टिस्ट जो हमारे सीनियर, जिनको बचपन से मैं देखता था, काम नहीं कर सका, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज मेरे साथ वो बैठे हैं और मैं उनके साथ बैठा हूँ, फ़ख्र महसूस करें। हमारी सीनियर आर्टिस्ट शमा आदिल साहिबा है, तो मुझे सबसे पहले इस बात की खुशी है। और इस ईद के हवाले से जी मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पहले जो ईद थी उसमें हमारे वालिदैन ज़िंदा थे, भाई मेरे 2 फौत हो गए, तो पहले ईद का कुछ मज़ा और था, खुशियाँ थी, लेकिन अब थोड़ा सा इस चीज़ की कमी हमें महसूस होती है। तो बाकी ईद है, ज़िंदगी जो है वो साथ साथ इंसान ने मरना भी है। तो बस जिस तरह पहले ईदें गुजरती थी अब उस तरह नहीं है मेरी, तो वो थोड़ी सी हमें फ़ील होता है, वालदा की कमी, वालिद साहब की, भाइयों की। तो बाकी इसलिए हम थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो छोटे बहन भाई हैं या भतीजे हैं तो वो इन चीज़ों को फील ना करें, बस ये थोड़ा सा फ़र्क आया। अच्छा, अपना जुल्फ़िकार अज़हर साहब, आपका एक ड्रामा हकीकत मेरे ख्याल में शायद था, उसमें एक मतलब वो ड्रामा बड़ा अच्छा रहा है आपका, तो उसका सीन हम अभी चलाते हैं, सीन आपको दिखाते हैं कि आपके जितने भी ड्रामे चले हैं सब में एक चेंज पन था। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कॉमेडी था तो कॉमेडी था, जी। और सस्पेंस था तो सस्पेंस, हर एक की अपनी अपनी तकवीयत थी, जान थी। तो उस लिहाज से इस ड्रामे के बारे में आप क्या कहते हैं? ज़रा ये देखें सीन हम जो चला रहे हैं आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन फ़ोन कर रहा था, मैं इतला दे रहा था, इसीलिए तो बंद किया फ़ोन। क्या मतलब? आमिर, हम ये बच्ची गोद नहीं ले सकते?
हाँ, लेकिन मालूम तो करना होगा कि आखिर किसका बच्चा है। इंसान का बच्चा है ना, कुदरत ने इसे हमारी झोली में डाल दिया, बस बात खत्म। बात यहाँ खत्म नहीं होती सायरा। इसकी माँ को कोई कत्ल करके बच्चा यहाँ भेज सकता है, किसी की जाती दुश्मनी में भी बच्चा अगवा हो सकता है। ऐसी सूरत में इस बच्चे की माँ पर क्या बीत रही होगी। और ये भी हो सकता है कि किसी ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया हो। अगर कोई खुदा की दी हुई रहमत नाशुक्री से हमारे दरवाजे पे डाल ही गया है, तो हम तो उसे अपनी दहलीज से यूं ना ठुकराएं। आमिर, अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे। सायरा, ये किसी दुश्मन की साजिश भी हो सकती है, ये चाल भी हो सकती है। दुश्मन ने हमें बदनाम करने के लिए ये साजिश की होगी ना। मगर देखो, हमारा दामन तो खुशियों से भर गया है ना। मेरी अपनी गोद तो आबाद ना हो सकी, अब उसे इस तरह वीरान भी ना होने दो आमिर। बस मुझे ये बच्ची लेके दो, मुझे ये बच्ची दिलाओ किसी तरह से भी, प्लीज आमिर। उसकी मर्जी, वो जिसको जिस तरह चाहे नवाज दे, प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड सायरा, ये हम किसी बड़े मसले में फंस सकते हैं, पुलिस को इत्तला करना जरूरी है। अगर किसी ने मेरी बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं आग लगा दूंगी, सुना तुमने? खबरदार जो कोई मेरे कमरे में आए। तो ये ड्रामा माशाल्लाह आपका लोगों ने बड़ा सराहा। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट आप आगे की मजीद क्यों नहीं, मतलब इस पे काम हो रहा है? ये ड्रामा जो था ना, ये पाकिस्तान का पहला हॉरर प्ले था। बेशक, माशाल्लाह। इससे पहले हॉरर किसी ने टच नहीं किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब मैंने इसको प्लान किया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अब तक किसी ने इसको प्लान क्यों नहीं किया हॉरर को। क्योंकि हॉरर जितना टाइम मांगता है जी जी जी, और जितनी एनर्जी मांगता है जी, और जितनी लोकेशन मांगता है, उतने नॉर्मल प्लेज या सीरियल्स नहीं मांगते। तो इसमें इतने में 3 सीरियल्स बनते हैं। जी जी जी। तो अल्लाह पाक का एहसान और करम है कि मुझे यावर हयात साहब ने कहा था कि यावर हयात साहब को तो आप वाक़िफ़ जी हैं, माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम जी, माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा था कि मेरी जान, मैं मुझसे हिंदको में बात करते थे वो। अच्छा अच्छा। तो हमारे इलाके के थे। तो कहने लगे कि मेरी जान, मैं देख रहे हैं तेरा हॉरर प्ले, तू पाकिस्तान दा एल्फ्रेड हिचकॉक है। वाह माशाल्लाह। तो मुझे ये एजाज़ यावर साहब ने दिया और मैं इतना खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के छोटे बड़े सारे अवार्ड्स मेरे पास हैं। बहुत खूब, बहुत खूब।